Hi everyone, my name is Dr. Shyam, and in this video I will discuss very important clinical MCQs for your NEET PG. Here 58-year-old diabetic man present with crushing chest pain for last 2 hours. ECG shows below. Blood pressure is 80/60. Lungs are clear. Which artery is most likely involved? So let's see the ECG. Here ECG is showing ST elevation in lead 2 and lead 3 and also in lead AVF. ST elevation in lead 2, 3 and AVF, and also reciprocal changes in AVL, ST depression. Okay, so it is a inferior wall MI. In inferior wall MI, which artery is involved? So it is right coronary artery proximal to RV branch. Okay, so option C is correct option. So these kind of question can be asked in the exam, which is culprit artery. Okay, so moving to the next question. Here a 24-year-old woman present with fever, altered sensorium, petachy and oliguria. Laboratory findings shows hemoglobin is 7.8, platelet counts is very less, 18,000. Serum creatinine is 3.4. It is also renal failure. LDS markedly elevated, peripheral smear, numerous cystocyte. PT, APTT normal, direct cum test negative. What is the most appropriate immediate management? So let's make the diagnosis here first. 24-year young age woman with anemia, thrombocytopenia, and renal failure, and also on peripheral blood smear there is cystocytes. Cystocytes are characteristics of what? That is microangiopathic hemolytic anemia. Okay, and PT, APTT normal, direct cum test negative. So it is a case of hemolytic anemia. इस पेशेंट में क्या हो रहा है? हेमोलिसिस हो रहा है. सिस्टोसाइट्स मिल रहा है. सिस्टोसाइट्स क्या होते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन में आरबीसी का मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे सिस्टोसाइट बन जाते हैं. तो देयर इज ए मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, सो देयर इज ए हेमोलिटिक एनीमिया. Let's see microangiopathic hemolytic anemia. Microangiopathic hemolytic anemia basically are two types. First is primary and secondary. Primary is TTP, thrombocytopenic purpura, and hemolytic uremic syndrome, and atypical hemolytic uremic syndrome. Secondary microangiopathic hemolytic anemia is you can remember by mnemonic DM, DCP, height, HT, DM, DCP, height, D for DIC, M for malignant hypertension, then D for drug associated या drug induced, C for cancer associated, P for pregnancy associated. Okay, and HT height, H is HE HELP syndrome. Okay, HELP syndrome, and also T for transplant associated, transplant associated. So these are the microangiopathic hemolytic anemia. So in this patient it is a cystocytes, so it is clear. So this is a case of TTP, thrombocytopenic purpura. How? So what is the most appropriate immediate management? What happened in TTP? TTP में क्या होता है basically? TTP में क्या होता है? ADAM TS13 एंजाइम लीवर में होता है.
ओके, इसका क्या काम होता है? ADAMTS13 एंजाइम सिंथेसाइज बाय लीवर। टीटीपी में क्या होता है? टीटीपी में ऑटो एंटीबॉडी बनती है, ऑटो एंटीबॉडी। ये ऑटो एंटीबॉडी क्या करती है? ADAMTS13 को डिस्ट्रक्शन करती है। ओके, सो देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ ADAMTS13 एंजाइम इन टीटीपी। So due to deficiency, in TTP there is deficiency of ADAMTS13 enzyme. What is the function of ADAMTS13? ADAMTS13 क्या करता है? वान विलेब्रांड फैक्टर को ब्रेक करता है। ओके, तो टीटीपी में क्या होता है कि ADAMTS13 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वान विलेब्रांड फैक्टर ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो अगर वान विलेब्रांड फैक्टर नहीं ब्रेक होंगे तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? अल्ट्रा लार्ज मल्टीमर बना लेते हैं, मल्टीमर्स। ओके, अब ये वान विलेब्रांड फैक्टर जो कि डिस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ADAMTS13, ये प्लेटलेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। प्लेटलेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोटिक एम्बोलाई बनाते हैं। ओके, तो दीज थ्रोम्बोटिक लेजन्स कॉजेज कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लेटलेट कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अब ये थ्रोम्बोसिस में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है यहाँ पे ये ब्लॉक कर देते हैं माइक्रो सर्कुलेशन के में, तो यहाँ ग्लोमेरुलाई भी डैमेज हो जाती हैं, तो इससे रीनल फेलियर हो जाता है। ब्रेन में जाके ये थ्रोम्बोटिक क्या करते हैं? स्ट्रोक कर सकते हैं, हार्ट की माइक्रो सर्कुलेशन में जाके ब्लॉक कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो टीटीपी इज़ ए वेरी इमरजेंसी कंडीशन। ओके, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका? लेट्स सी। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन फॉलोड बाई कार्टिकोस्टेरॉयड। यू कैन गिव कार्टिकोस्टेरॉयड जस्ट टू रिड्यूस द ऑटो एंटीबॉडी। मेन जो हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हुई है अगेंस्ट ADAMTS13, तो बट जो मेन कॉज है ऑटो एंटीबॉडी को हटाना। और दूसरी चीज़ कह रहा है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तुम ये बताओ, अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करोगे तो ये प्लेटलेट ज़्यादा देने से क्या होगा? ये वान विलेब्रांड फैक्टर के साथ मिलेंगे और थ्रोम्बोसिस और ज़्यादा होगा। ओके, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कंट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, बट अवॉइड करते हैं टीटीपी में। क्यों? क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस को और वर्सन कर सकते हैं। प्लेटलेट तभी ट्रांसफ्यूज करते हैं जब कोई सीवियर ब्लीडिंग हो रहा हो या कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना हो। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एलोन। फ्रेश फ्रोजन, ओके, FFP में क्या होता है? मान लो तुम्हारा ADAMTS13 एंजाइम तो मिल जाएगा, लेकिन जो तुम ऑटो एंटीबॉडी बनी है वो तो नहीं हट रहा है ना FFP देने से। FFP एक मेथड है, दे सकते हो तुम, क्योंकि उसमें ADAMTS13 को रिप्लेस करेगा, बट स्टिल जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है वो फिर इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा जो तुम FFP चढ़ाओगे, जो जिस FFP में ये होगा एंजाइम। तो बेस्ट जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा इमरजेंसी प्लाज्मा एक्सचेंज विद कार्टिकोस्टेरॉयड। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ओके, इमरजेंसी प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा एक्सचेंज? प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या होता है? पेशेंट का प्लाज्मा को बाहर कर दिया जाता है और न्यू प्लाज्मा उसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो पेशेंट को प्लाज्मा को एक्सचेंज करेंगे तो उसका ऑटो एंटीबॉडी भी वॉश आउट हो जाएगा, साथ में उसको न्यू प्लाज्मा चढ़ाएंगे तो उसको एंजाइम्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, साथ में कार्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं। तो बेस्ट इज सी, प्लाज्मा एक्सचेंज इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टीटीपी। जितना अर्ली किया जाए बेस्ट होता है पेशेंट के लिए। ऑप्शन डी इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। No, intravenous immunoglobulin mainly we give in the GBS and all this. So option C is correct. So it was a very tricky question, and this kind of question may be asked in your NEET PC examination. Okay, it is very simple. Options. Moving to the next question, number 3rd. Primary gravitas 36 weeks. Develop 170 by 110 BP with headache, visual symptoms and proteinuria. What is this? This is severe preeclampsia. Severe preeclampsia. फर्स्ट ड्रग टू प्रिवेंट मैटरनल मोर्टलिटी। मोर्टलिटी को कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं हम लोग? ऑप्शन इज लेविटोलॉल ओनली।
In this patient, we can give labetalol for control of the hypertension, but to reduce the mortality, first thing we will give magnesium sulfate. Okay, MgSO4. So option B is correct. सबसे पहला काम करना है MgSO4 देना है, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव देना है, एंटी हाइपरटेंसिव. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. लेविटोलॉल हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. इट इज़ चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव. निफिडिपिन आल्सो कैन बी गिवन एंड हाइड्रोलाजिन कैन आल्सो बी गिवन. सो फर्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. इट रिड्यूस द मोर्टलिटी. इट विल प्रिवेंट पेशेंट लैंडिंग इनटू द एक्लेम्सिया. अगर तुम MgSO4 दे दोगे पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया को, तो क्या होगा, मोर्टलिटी कम होगा, उसको एक्लेम्सिया में लैंड अप नहीं करने पाएगा. उसके बाद तुम लेविटोलॉल एंड एंटी हाइपरटेंशन दो. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. पेशेंट डेवलप हाइपोटेंशन, फीवर, टैकीकार्डिया एंड राइजिंग लैक्टेट आफ्टर बावल परफोरेशन. बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट. पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो CT एब्डोमेन तो नहीं कराना है, जस्ट बिकॉज अनस्टेबल पेशेंट को यू विल नॉट सेंड फॉर इमेजिंग. ऑप्शन बी इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फ्लूइड्स सोर्स कंट्रोल. यस, बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट इज दिस इज करेक्ट. सी, वैसोप्रेशर फर्स्ट. नो, पहले पेशेंट को IV फ्लूइड देते हैं, IV एंटीबायोटिक देते हैं. इफ़ द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द फ्लूइड, देन वी विल गिव नॉरेपिनेफ्रिन वैसोप्रेशर. तो फर्स्ट इज नॉट वैसोप्रेशर. फर्स्ट थिंग इज IV fluid, antibiotics, source control. After that, if the patient is not responding to the fluid, then we will give vasopressor. Wait for culture report. No, तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा. Moving to the next question. Question number 5. Here 6-year-old boy developed palpable purpura over leg, abdominal pain and hematuria. Most likely diagnosis. So ITP में पेन एब्डोमेन होगा? नहीं होता है. ओके, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. दिस कैन नॉट बी आंसर. हिनाक इज कॉल्ड इन परप्यूरा. या इट कैन बी बिकॉज 6-year-old boy developed purpura over legs, abdominal pain and hematuria also. So it is a IgA vasculitis. IgA vasculitis. इसमें क्या होता है, हिनॉक स्कॉलियन परप्यूरा में ये बेसिकली प्रेजेंट करता है आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ओके, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसमें IgA एंटीबॉडी बनती है. ये IgA एंटीबॉडी एक्सेसिव क्या होती है, स्किन पे डिपॉजिट हो जाएगी. दैट इज कॉज्ड IgA स्किन वैस्कुलाइटिस, IgA एसोसिएटेड. एंड GIT में डिपॉजिट होगा IgA, तो GI वैस्कुलाइटिस, जिसकी वजह से पेन एब्डोमेन होगा पेशेंट को. ओके, एंड आल्सो इन किडनी. सो हिमेचूरिया होगा, ग्लोमेरुलर को इन्वॉल्व करेगा तो हिमेचूरिया होगा. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, ऑप्शन सी इज hemolytic uremic syndrome. नो, hemolytic uremic syndrome may present with the hematuria and renal failure, but hemolytic uremic syndrome का जो पेशेंट होगा वो ब्लडी डायरिया के बाद आता है. ब्लडी डायरिया हुआ पेशेंट को, जो सीगालाइट टॉक्सिन्स होती हैं वो उसके बाद से रीनल फेलियर होता है, देन ये. तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग. ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट. Patient on ACE inhibitor develop persistent dry cough. So it is very easy question. It may be asked. So bradykinin, due to accumulation of bradykinin. Option C is fast scan trauma demonstrate free fluid in Morrison pouch. What is Morrison pouch? The space between liver and right kidney. Okay. So most likely interpretation क्या हो सकता है? Left pleural effusion? No. Intraperitoneal hemorrhage? Yes. It is B option. Pericardial tamponade? No. स्प्लीनिंग में तो होगा नहीं. मॉरिसन पाउच जहाँ कहाँ पे होता है, ये वन इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज. व्हाट इज फास्ट? फास्ट इज फोकल असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रामा. ओके, तो इसमें कहाँ रखते हैं हम लोग प्रोब? तो एक तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, वन इज ऑन एपिगैस्ट्रियम, other is pelvis. Okay, what is E fast? E fast में extended fast. यहाँ पे प्रोब रखना है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, पेल्विस और हाइपोगैस्ट्रियम, और दो एक्स्ट्रा दैट इज
right chest and left chest. Okay, so this is E first. Moving to the next, patient with fever, hypotension, pitaky and neck stiffness. फीवर है, पिटाकी एंड नेक स्टिफनेस है, इट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग मेनिंजाइटिस. सो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक क्या देते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस में? सेफ्ट्राक्सोन. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज अ पोस्ट ऑफ थायराइडेक्टमी पेशेंट डेवलप टिंगलिंग एंड अराउंड द माउथ, कार्पोपिटल स्मास. इस पेशेंट को क्या हो रहा है? किसी को थायराइडेक्टमी हुई, थायराइड ग्लैंड को निकाला गया, उसके पीछे होता है पैराथायराइड. तो मान लो एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गई, तो क्या कम हो जाएगा ब्लड में पेशेंट को? कैल्शियम, ड्यू टू रिड्यूस पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कैल्शियम कम हो जाएगा, तो पेशेंट क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया. मूविंग टू द नेक्स्ट. हियर 67-year-old मैन विथ एंटीरियर वॉल MI develop sudden hypotension. Finding is hypotension, heart rate, tachy, cold extremities just because of hypotension is there. PCWP is 28 millimeter mercury. Cardiac interest is this. Systolic vascular resistance elevated. तुमने इकोकार्डियोग्राफी किया तो उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन 25% आया. किसी पेशेंट का अगर EF इतना ज़्यादा लो हो जाएगा तो BP कहाँ से आएगा? तो क्या है कि आफ्टर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, एक्सक्लूजन ऑफ मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, विच ड्रग इज़ द बेस्ट इनिशियल वैसोएक्टिव. कोई पेशेंट अगर हार्ट फेलियर का आ रहा है और शॉक में आ रहा है और उसका EF 25% है, इट मीन्स कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो देन यू विल गिव क्या? डोबूटामाइन, दैट इज़ β1 सेलेक्टिव, β1 एगोनिस्ट. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर.